Yes, welcome all of you in ज्ञान वैविध्य चैनल से श्री सूरजमल कापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं राकेश कुमार यादव आपको शास्त्री थर्ड ईयर की एक पोइम है ONV ग्रुप की ONV ग्रुप अर्थन वर्ड्स। दिस पोइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन थर्ड ईयर सेक्शन B. In this poem, first of all, we can say that Earthen Pot poem is written by ONV Guru. ONV Guru was a Malayalam poet. He was born on 1931. ONV was born on 1931. He was a prominent writer, Malayalam prominent writer. The Earthen poem, which was composed in the Malayalam literature, Malayalam language, then Sri Dharan Nair translated into English. First of all, ONV Group composed this poem in the Malayalam language. Then, as Sri Dharan Nair translated Malayalam into English language. And he was born 1931. When he was 8 years old, he lost his father. But however, he continued his study and he passed MA in Malayalam language. He had a great attachment with the Malayalam language. ONV Group composed 18 books of poems and 6 books of prose and 15 songs collection which they called Songs of ONV. Songs of ONV, it was the collection of songs and there are 1500 songs in this collection. He composed poems of children published in the Pieces of Bengal. Pieces of Bengal, which was also a collection. In this collection, he composed 4 children's songs, children's poems. Thus, we can say he was the best lyrics poet in English literature. We have known about the poem. Now, we are going to read the poem Earthen Pots. What is the message? What is the message of the line? For dust thou art and unto dust shalt thou return. It is very important line, very didactic line, very philosophical line, very philosophical line. For dust thou art. अरे तू तो मिट्टी से बना हुआ है. You are made of dust. And unto dust shalt thou return. और तू ही इस मिट्टी का बना हुआ है और तू ही इस एक दिन मिट्टी में क्या आएगा? मिल जाएगा. माटी कहे कुमार से दो रोदन तुम हो एक जमाना आओ मैं रोदूंगी तो मिट्टी की जो व्यथा है वो अपने वाटर से कह रहा है, कुमार से कह रहा है कि आज तू मुझे क्या कर रहा है, रोक रहा है. एक समय ऐसा आएगा जब तू भी इस मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. कितने फिलोसॉफिकल आइडिया है ONV ग्रुप के इन दिस पॉइंट. आई एम टेलिंग यू द पोएम इन इंग्लिश. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. द पोएम uses the earthen pot as the symbol. The poet ONV Group choose to uses the earthen pot as a symbol. Do you know what is mean of symbol? एक प्रतीक के रूप में earthen pot को प्रतीक के रूप में चुनता है. We know that the earthen pot and human beings are made of earth. The earthen pots and human beings are made of earth. मानव का जीवन और earthen pot जो घड़ा होता है जिसको कुमार बनाता है वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं. He compares the human life
So he chooses as a symbol. वो एक प्रतीक के रूप में अर्थन कोड को एक प्रतीक के रूप में चुनता है. Both are also very cheap. The earthen code and human life are very cheap. Can you say the human being are very cheap? अरे मूर्खों, ह्यूमन लाइफ कैसी होती है? बहुत ही कॉस्टली होती है. लेकिन यहाँ कवि क्या कहता है कि ह्यूमन लाइफ एंड अर्थन लाइफ आर वेरी चीप. एवरी पर्सन कैन डिस्ट्रॉय इट, एवरी पर्सन कैन ब्रेक इट. हर व्यक्ति इसको क्या कर सकता है? तोड़ सकता है. मानव का जीवन भी कैसा है? चीप है. एंड एवरीवन दे मे इजीली ब्रेक, दे मे इजीली ब्रेक. द अर्थन कोड लेमेंट when one of them leaves them. The earthen codes lament. Do you know lament? Lament का मतलब होता है विलाप करना, रोना. तो earthen lamp क्या करता है? Lament करता है. Why? Why the earthen lamp code lament? क्यों lament करता है? When one of them leaves them. One of them leaves them. क्योंकि उनमें से एक छोड़कर चला जाता है. क्योंकि जब मटकों की एक पूरी लाइन लगी हो, उनमें से एक बर्तन चला जाए, एक को मटकी चली जाएगी अर्थन कोड, तो जो दूसरे अर्थन कोड थे वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, हम यहाँ से कब चले जाएंगे, हम यहाँ कब से जाएंगे. सिमिलरली इसी प्रकार when a man dies, जब एक व्यक्ति क्या करता है? मरता है. The survivors lament for them. The survivors जो जीवित प्राणी होते हैं, all are survivor creature, they lament for them. वो उनके लिए क्या करते हैं? विलाप करते हैं. जिस प्रकार घड़ा एक चला जाता है तो बाकी घड़े उसके लिए क्या करते हैं? lament करते हैं. Similarly इसी प्रकार a man dies, the survivors lament for them and they express their sorrow on the death of a person. और वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति की मृत्यु को क्या करते हैं? शोक प्रकट करते हैं. तो मानव का जीवन कितना चीप होता है, कितना. The earthen codes do not know about their destiny. The earthen code do not know, वो नहीं जानते हैं. The earthen code do not know where are their destiny. उनकी मंजिल कहाँ है? अर्थन कोड की जो मंजिल कहाँ है, उनका भाग्य क्या है? They do not know, वो नहीं जानते हैं. About their destiny, they do not know when and where they turn will come. और जो remains रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, they also do not know when and where their turn will come. Their turn, उनकी बारी कब आएगी, वो खुद नहीं जानते हैं. The poet has applied the same thing to the human being. The poet has applied the same thing for the human being. और इसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति क्या होता है? बहुत ही बच्चों फिलोसॉफिकल आइडिया रखे इसके अंदर कवि ने. और कवि ने कहा है तो इस व्यक्ति से जन्मा है. ये बिब्लिकल जो थॉट है कवि की. आपने कवि की कविता पढ़ी होगी, that we not proud, which is in the first year syllabus, which is composed by John Donne. John Donne ने कविता लिखी, अरे मृत्यु तू गर्व करती है अपने आप, तू मेरे को नहीं मार सकती. वो उसको चैलेंज करता है. डन उसको चैलेंज करता है, मृत्यु तू पावरलेस है, तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, ले तू मुझे मार. तो मृत्यु नहीं मार सकती. मृत्यु तो क्या करती है? किसी व्यक्ति का सहारा लेती है, बीमारी का सहारा लेती है. अरे तो फलाना व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया, तो वो सपोर्ट लेती है किसी न किसी माध्यम का. मृत्यु खुद क्या है? बोलो, मरणशील है. वो खुद मर सकती है, वो मुझे क्या मारेगी. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, which is prescribed in your course. I am reading this point, stanza, a very short stanza. How long have we remained here? Two empty earthen codes gazing to each other. The potter, कुमार क्या करता है? Are making the earthen code. When the earthen code come in his yard and they are touching each other.
टू एम्प्टी earthen pots grazing to each other, दो पत्र दो मटके आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करके गेजिंग निहार रहे हैं। क्लोज बाय द पॉटर यार्ड, पॉटर यार्ड का मतलब होता है कुम्हार के आंगन के अंदर वहां बर्तन पड़े हुए हैं मिट्टी के बने हुए, तो उनमें से वो एक दूसरे को बर्तन क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, निहार रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं। सो क्लोज दे सॉफ्टली ब्रूसिंग अगेंस्ट ईच अदर, ब्रूसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हवा के झोंके से टच कर रहे हैं। एंड नॉट क्वाइट श्योर वेदर टचिंग इज नॉट, वो टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन वो हिल रहे हैं आपस में, गेजिंग टू ईच अदर ऑफ ए इनएक्सक्यूटेबल जस्ट, अर्थात उनकी नजरों के अंदर जुनून, उनकी नजरों से वो एक दूसरे को देख रहे हैं। वी टू earthen pots, हम दो मिट्टी के बने हुए बर्तन, हम दो मिट्टी के बने हुए पात्र। Those who are a golden globes drink red wine, कुछ धर्मात्म लोग क्या करते हैं, रेड वाइन लाल रंग की शराब को सोने के बर्तनों में पीते हैं। तो उस समय हमारी वैल्यू क्या होती है, we are neglected in the eyes of rich people, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि सोने के पोट के अंदर और रेड रंग की वाइन पीने वाले आदमी, उनके लिए हम क्या है, एक वेरी लेस पर्सन है। May dismiss us of a contempt and a extreme scorn, अर्थात वो लोग हमें क्या करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और we are made of for the poor simple folks, we are cheap, अरे हम तो बहुत सस्ते हैं, and may easily break, हमको तो हर कोई आराम से तोड़ देता है, क्योंकि हम तो मिट्टी के बने होते हैं। True, yet we are good enough to store, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, कभी कहता है गिफ्ट, हमें जो जल है धरती में जो जल मिला गिफ्ट के रूप में, हम उसको स्टोर करने में सक्षम हैं। पृथ्वी का जो जल है जिसको लोग अमृत मानते हैं, एलिक्सर मानते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर के रूप में रख सकते हैं। The blessed gift of earth, which is blessed gift of earth, water is blessed gift of earth, water clear and pure, जब पानी हमारे अंदर रहता है क्या रहता है, शुद्ध और प्योर रहता है। Without our hold up polluted, हमारे अंदर up polluted, वो प्रदूषित नहीं होता है। Though we are mere earthen pots, even our makers do not know, हमें बनाने वाला भी ये नहीं जानता है कि हम से कब जाएंगे। Where tomorrow we shall, क्या कल जाएंगे। 100 like us who are a crowded here are waiting for some unknown buyer, और कुछ अज्ञात लोग वहां पर हमें खरीदने के लिए आते हैं, तो हमें उठाकर अपने कानों से, अपने फिंगर से हमको बजा बजा कर देखते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है ना। अब टू लिफ्ट अस अप वन बाय वन, एक एक करके उठाते हैं, एंड होल्ड अस टू द ईयर, अपने कानों के पास लाते हैं, एंड विद ए फिंगर स्ट्रोक्स क्वालिटी, और अपनी उंगली से बजाकर हम हमारी क्वालिटी को देखते हैं। टेस्ट अस टू द साउंड, इफ सेटिस्फाइड ही वाइज, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। वन एंड वॉक्स अवे, और खरीद कर चले जाते हैं। फॉलोड बाय ओवर 6 दैट माउंट ऑफ ए थ्रू ऑफ ए वो एंड इंसेंसेस ऑफ लॉस, वन हु आर वन ऑफ अमंग अस एंड वन ऑफ टॉक्स होल्ड ऑफ अस, एंड व्हेन डर ओवर टर्न कम टू डिपार्ट। अब वो कहते हैं कि हमें भी यहाँ डिपार्ट होने के लिए, रवाना होने के लिए हमारा नंबर कब आएगा। वो मटके है ना, एक दूसरे के लिए इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी को देखकर उनको ले जाते हैं। और लेकिन दूसरे जो बचे हुए जो earthen pot हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, जब हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो एंड व्हेन इट कम्स, जब आएंगे, एंड यू वुड बी ए फर्स्ट टू लीव, तो तुम हमें क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति कभी कहता है कि मनुष्य का जीवन भी मनुष्य को खुद नहीं मालूम होता है कि उसकी डेस्टिनी, उसकी मंजिल क्या है। लेकिन if a person dies and all the survivors lament on their death, तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उसकी मृत्यु पर क्या करते हैं, गीत करते हैं, मृत्यु पर रोते हैं, शोक प्रकट करते हैं। जिस प्रकार एक घड़ा जब चला जाता है तो बाकी घड़े क्या करते हैं, बोलो, एक्सप्रेस देयर सोरो, अपने दुख को प्रकट करते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन ए पर्सन हु गोज फ्रॉम दिस वर्ल्ड
तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके लिए क्या करते हैं, विलाप करते हैं। तो बच्चों, मनुष्य जीवन की तुलना द पोएट O.N.V. क्रूग कंपेयर्स द ह्यूमन लाइफ विद द अर्थन गॉड। वास्तव में उसने अर्थन गॉड से जो मानव जीवन की तुलना की है वो बड़ी ही कैसी है, मार्मिक है। ओके, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइल, हैप्पी एंजॉय डे, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।